So yesterday we have seen one of the way that how to come out with these values. Hmm? I want to VB is equal to omega 2 into I want to 2, 3. And then said that VB can also be with a relation that I want VB by I want 3B है ना? ये था ना हमारे पास VB by I want 3B is equal to VA by I want 3A is equal to omega 3. Hmm? तो Yes. इसको रटने की जरूरत नहीं है. There is a certain logic, very mathematical basic concepts. अगर हम इनको देखें तो these two are the similar triangles. These two are the similar triangles. So we can use the concept of similar triangles also. ठीक है, जैसे भी हमने बताया कि क्या था हमारे पास में VA by I13A is equal to VB by I13B is equal to omega 3. और फिर हमने ये भी बताया कि एक तरफ से VB is equal to omega 2 into OB, है ना? OB ये तो है ही है. और भी तरीके इसके हम निकाल सकते हैं यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स. ये तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है ही है. ठीक है, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा, ये तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है ही. दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स. यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स. ये कैसे काम करता है भाई सिमिलर ट्रायंगल्स? सी इन दीज टू ट्रायंगल्स. ठीक है ना, ये वाला ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे देखिए. कैन वी से the triangle I13, I23, I34 in triangle, है ना? In triangle this and triangle I12, I23, I2, sorry, I24. So दोनों ट्राइंगल सिमिलर है भाई, ये प्रॉपर्टी. 1, 3, 2, 3, 3, 4 and 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4. मतलब एक ट्रायंगल हमारे पास हो गया. अगर मैं थोड़ा सा उसको बोल्ड कर देता हूँ, एक ट्रायंगल हो गया ये, और थोड़ा सा बोल्ड
1 3 I 2 3 मतलब this line by this line है ना 1 2 2 3 and then 1 3 2 3 is equal to I 2 3 2 4 by 2 3 3 4 2 3 2 4 by 2 3 3 4 means now मैं थोड़ा सा ना एक इरेज कर दूं ताकि ये बहुत सारी जो लाइंस हैं वो हट सकें ठीक है मतलब फिर ये बाय ये वन कैन वी राइट दिस और नॉट Yes, sir. यस सी दिस in similar triangles what I'm saying 1 2 2 3 means this line by this line is equal to this line by this line by the using similar properties of similar triangles ठीक है कहीं लिख लीजिए using properties of similar triangles ठीक है using properties of similar triangles we can write down this part same way जैसे हमने ये किया अब हम एक और लिख रहे हैं मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ same way I'm saying that I 1 3 I 3 4 by I 3 4 2 3 what is that 1 3 by 3 4 3 4 by 2 3 means I'm saying now this by this is equal to what is equal to I 1 2 I 2 4 by I 2 4 I 2 3 मतलब 1 2 2 4 मैं कह रहा हूँ this by this line just see if I say this line by this line means it is equal to this line by this line huh Yes, sir. it also stands correct here mark it somewhere like this so that way what we can write as we know that यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज कर देते हैं as you know that omega AB what is omega AB omega BB मतलब omega 3 is equal to VB by I13B is equal to what? Omega OB. Omega OB into OB by 13B. We can write down ना हमने ये निकाला ही था सबसे पहले ये चीज है ना
सबसे पहले शुरू में रखा था ना, ये तो सबसे पहले होना। That how to find VB? VB is equal to omega 2 into I12 23. This value. So याद लेते हुए, this is now equal to omega OB. What is OB? OB is, what is OB? OB is I12, I23 divided by I13, I23. So you can see this part. ये हम जो यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. So is it clear or not? Yes, sir. So by the virtue of similar properties of similar triangles, you can now understand this different methods to find out the if you know omega 2, you can find out omega 3. In fact, you can reach to velocity of any link. और एक जो क्वेश्चन जो मैंने ये दिखाया था आप लोगों को ग्राफिकल वे, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट। No, sir. सी इसमें हम एक कंक्लूजन ये कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं अपना ये इंट्रोडक्शन हटा देता हूँ। हमने क्या किया था यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हाँ ये दिया था ना हमने स्टेटमेंट, this statement, we say that if I say omega 2 by omega 4, omega 2 by omega 4 is equal to what? I24, I14 by I24, I12. ये हुआ omega 2 by omega 4, omega 2 यहाँ से आ गया ना ये वाला, omega 2 by omega 4 is equal to 2414 ओमेगा 2, ठीक है, बाई ओमेगा 4, सपोज दिस इज ओमेगा 4 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 2414 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 4 इज इक्वल टू 2414 बाई 2412 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 4 इज इक्वल टू this distance by this distance. क्या मतलब है बताने का, that you write down, conclude that the angular velocity of two links, the angular velocity of two links are inversely proportional to the distance between common instantaneous centers to their
respective centers of rotation लिखते हैं ना, ω1 by ω2 is equal to R2 by R1, यही होता है ना। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को जो थ्योरम शुरू कराई थी, जस्ट रिकॉल में दिखाता हूँ वो कहाँ था मेरे पास में, इसको सेव कर लेते हैं, उसको भी दिखाते हैं। इंस्टेंटेनियस इस केस में आए थे हम लोग, जो रोटेशन वाले थे क्वेश्चंस वो कहाँ गया, जो शुरुआत में थी उसमें भी नहीं, शायद इंट्रोडक्शन में था क्या, लेट मी जस्ट सी। हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है। हालांकि हमारे पास में यहाँ उस प्रकार से नहीं दिया हुआ, बट वी हैव सीन दैट जो कंक्लूड किए थे हमने पॉइंट्स, है ना, body 2 is in pure rotation with respect to body 1, then we concluded that two links are hinged together, the instantaneous centers, है ना, is the their hinge is the instantaneous center, अच्छा प्योर स्लाइडिंग। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए आप, ठीक है। अगर ये कंक्लूजन मैंने नहीं लिखवाया है, पहले मैं देख रहा हूं मैंने शायद नहीं लिखवाया है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। ये कैनेडीज थ्योरम में आपको मिल जाएगा, है ना, कैनेडीज थ्योरम में जैसे मतलब ω1 by ω2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू ω_r, है कि नहीं, V इज इक्वल टू ω_r हम जब कर रहे थे, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ आपको, नहीं ये तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से कर देते हैं। जैसे V23 आया ना, V23 इज अ कॉमन पॉइंट, V23 यहाँ से भी मिल रहा है ना, V23 हमें यहाँ से भी मिल रहा है, तो क्या हो गया, V23 इज इक्वल टू ω2 into O1P is equal to ω3 into O3P, ये हुआ ना, P डैश मान लो, यहाँ पे लिखा हुआ ना इस तरीके से, तो if I say, तो basically this is say ω2 by ω3 is equal to O3P dash by O1P dash, okay, so this is what the meaning is. So angular velocities of two links are inversely proportional to the distance from the instantaneous center to their respective rotation point, ठीक है। हाँ, जहां तक इसको हम कैनेडीज को वैसे चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इफ आई से 3 links, so I want to 2 3 and 1 3, इस चीज को अगर हमें क्रॉस चेक करना है कैनेडीज थ्योरम को,
जैसे कि अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कोई भी एग्जांपल कनेडी थ्योरम का अगर हम प्रूफ लेना है, चलिए यहीं से ले लेते हैं इस ट्रायंगल में, या मैं देखूँ इसको कहीं और हम दिखा सकते। चलिए ठीक है, तो मैं डायग्राम्स को ओवरलैप नहीं करना चाह रहा हूँ। कैनेडी थ्योरम का प्रूफ चलिए यहाँ दिखा देते हैं, इसी ड्राइंग, ठीक है। तो इफ आई से इसका प्रूफ लेना है ना हमें, कहाँ गया कैनेडी थ्योरम, ये, तो इसका प्रूफ आप यहाँ ले सकते हैं। Just a minute. कोई बात नहीं। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया था ना, मैं दोबारा से बना देता हूँ, चलिए दोबारा से करें। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, कैनेडी थ्योरम है ना, कैनेडी थ्योरम। तो लेट अस सी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, this is I1, 4, this is your point I1, 3, this is I2, 3, no, sorry, 2, 4. 2, 4, this is I2, 3, I1, 2, I3, 4. देखिए, अगर हम बोलते हैं I1, 2, है ना, जस्ट से I1, 2, दूसरा क्या होगा, I, 3 लिंक है, 1, 2, 3, हाँ, जस्ट चलो मैं इस पास से करता हूँ, फॉर लिंक्स 1, 2, 3, 3 ज्वाइन हो रही है एक दूसरे से, तो इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जो 3 होंगे वो एक ही लाइन में मिलना चाहिए, जैसे I1, 2, I2, 3, I1, 3। ठीक है, देखिए आ रहे हैं क्या, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। देखिए I1, 2, I2, 3, I1, 3 on a straight line. They are on the straight line. ऐसे ही अगर हम बोल देते हैं और links 2, 3, 4, हाँ, तो I2, 3, I3, 4, I2, 4। देखिए एक लाइन में है कि नहीं है, 2, 3, 3, 4 और 2, 4, 2, 3, 3, 4 and 2, 4, they are also on the same line। ठीक है, so this is the now proof for Kennedy's that if the 3 bodies are in relative motion, मैंने कहीं लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, हाँ, stated if 3 bodies are in relative motion with respect to one another, their 3 relative instantaneous centers of velocity must be on a same line, or we say collinear। ठीक है, इसे collinear। So this is the proof which we have seen here। क्लियर, बताइए।
हवीस, यस सर। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अरे मैं क्लास में हूं कि नहीं हूं, या मैं ऐसे ही चल रहा हूं? यस। हेलो। साउंड नहीं आ रही, क्या बात है? मेरा साउंड कहाँ जा रहा है यार? जस्ट मिनट। अच्छा, यहाँ साउंड कम है। हाँ, यस, आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, मेरा ही साउंड, इसका माइक स्पीकर का साउंड कम था। ठीक है। मुझे पता नहीं, किसी ने कोई क्वेश्चन भी पूछा हो तो शायद मैं नहीं सुन पाया हूँगा। हैव एनी डाउट? इंस्टेंटेनियस जो लॉजिक है बहुत सिंपल है, और मैंने बताया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये जो मैंने भी बताया, दैट ये जो ओमेगा है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टू लिंक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द distance between the center of rotation to the common IC, इंस्टेंटेनियस सेंटर। ये है कॉन्सेप्ट। या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स है आपके पास में। बुक में भी थोड़ा देखिए इसको, है ना, बुक में भी देखिए। हम बहुत सारी स्लाइड्स को लें, कौन सी स्लाइड पर है? इस पर थे क्या? क्या हो, क्या स्लाइड्स? विच वाज द लास्ट स्लाइड? ये थी। यस सर, कैनेडीज प्रूफ बता रहे थे आप। हाँ, कैनेडीज प्रूफ वाली कहाँ गई? ऊपर ही से। ओह, मुझे लग रहा है किसी दूसरी स्लाइड में तो नहीं लिख दिया मैंने। लेट मी जस्ट, इसमें नहीं आया वो। अच्छा, वो दूसरे वाले में मैंने कर दी हुई है, दूसरी स्लाइड में। जहां तक मुझे लग रहा है, कितनी स्लाइड खुली हुई है? 3-4 खुली हुई है क्या? चलिए आगे बंद करते हैं। मेरे पास तो कहीं ऐसा डाउट ना लगे कि हम स्टेबिलिटी यहाँ से नहीं हो रही, यहाँ से करता हूँ। फिर से खोल लेते हैं, इसको चला रहे थे ना हम लोग। मैं उस स्लाइड में पहुंच गया था, शायद मल्टीपल स्लाइड्स खुल जाने। हाँ, इस पे थे हम लोग, है ना? यस, आई। तो होप ये जो मैंने आपको बताया अभी, that the angular velocity of two links are inversely proportional to the distance between the common axes to their respective center of rotation. Omega 1 by omega 2 is equal to R2 by R1. ठीक है। और अगर वो नहीं तो फिर ये सिमिलर ट्रायंगल्स को भी आप समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया एक, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। द वर्ड यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। इसको एक लाल पेन से कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके। ठीक है, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये हमने दो तरीके देखे। क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड ही आएंगे। इधर यू हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स, या फिर वो किसी एक लिंक का यूजुअली क्रैंक की आरपीएम दे देते हैं, एंड दे आस्क फॉर द वेलोसिटी ऑफ ईदर स्लाइडर और द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, आप थ्योरी ऑफ मशीन्स की, चाहे वो बुलाने की बुक हो या फिर आपके इसमें खुरमी की बुक हो, उसको देखें। सर मोस्टली क्वेश्चन सर सिमिलर ट्रायंगल से हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब मैं फिर भी जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, उनको आप ट्राई करें, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू एन असाइनमेंट फॉर दिस, कि यहाँ शुरू करते हैं।
एक एक डायग्राम हमारे पास में एक क्वेश्चन है, locate all the instantaneous centers of the given mechanism. और मैकेनिज्म क्या है हमारे पास? है हैंड पंप। कितनी लिंक हो गई? ये तो यहाँ पे हिंज हो गई है। तो ये वो कलर नहीं है, कौन सा तो ये वाला ना। ये तो एक प्रकार से बॉडी है, तो बॉडी पे ही वो फिक्स है, तो मैं इसको अलग से कुछ नहीं दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये इसको सेंटर लाइन मार लीजिए। तो ये एक पॉइंट हो गया, दो, कितने लिंक्स हो गए देखिए जरा, लिंक्स कितनी है? हाउ मेनी लिंक्स आर देयर? Sir, 4 link. लेट अस काउंट। ये सिलेंडर, ये हो गया फ्रेम एक लिंक, दिस इज लिंक 2, दिस इज लिंक 3, और दिस इज योर पिस्टन विद दिस इज लिंक 4। तो फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स, कितने बनेंगे और वो कहाँ होंगे? ठीक है, ये देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन 1। नाउ आई कम टू क्वेश्चन 2। एक और दे रहा हूँ, 2-3 दे रहा हूँ। लोकेट ऑल द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स ऑफ द गिवन मैकेनिज्म। एक और दे रहे हैं आपको, सेम सेम यही आपको सबमिट करना है। जब मैं इसको I'm giving you, so this is 1, इस डायग्राम में तो मैं आपको हिंट देने के लिए अलग अलग कलर्स की बना दिए थे। ये भी लिंक ठीक से नहीं है।
ठीक है, इसमें कितनी लिंक्स हैं? कुछ मैं और दे रहा हूँ। ओके, सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन ये मैं अगर आपको लिंक्स के नंबर बता देता हूँ तो चलिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सभी लोग एक जैसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपका आधा काम तो वैसे ही मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। और एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में हम कुछ और नया देखते हैं। ये मैं आपको एज ए असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये इस लिंक के ऊपर स्लाइड कर रहा है और इस पे खाली ये हिंज है। और चलिए एक और कर लीजिए, 5 क्वेश्चंस दूंगा मैं, ये आपको अपने उसमें बुक में बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल में। दिस इज स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइडिंग ओवर ए बॉडी। This is 1 2 3 4. So these are the 5 questions I'm giving you for an assignment.
Locate all the instantaneous centers of the given mechanism. ठीक है? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ये जिसको फोटो खींचना हो, जैसे भी करना हो, ये okay. Now let us move to some other topic. Let me just see what else I can give you. क्या है वो रतन की बुक हो, हाँ? या बलानी की बुक हो, जस्ट फाइंड आउट द क्वेश्चंस based on how to find the velocity using instantaneous center method, and do only the questions of four links, 4 bar chain. 6 पे मत जाइएगा, 4 पे ही रखते हैं। 4 पे ही आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, that more than sufficient. और क्या कर सकते हैं? एक्चुअली वही इसमें प्रैक्टिस है, कितने क्वेश्चंस आप मैक्सिमम कर पाए, सो दैट कि एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हाँ भाई मैं ये क्वेश्चंस कर सकता हूँ। चलिए, मुझे लग रहा है कि इसके बाद में हमारे पास में फिर से हमें एक नया टॉपिक लेना होगा, दैट इज ऑन फिर उसमें वेलोसिटी भी लेंगे और फिर हम एक्सेलरेशन भी लेंगे, ठीक है? उसमें हम फिर वेलोसिटी भी चलाएंगे और एक्सेलरेशन भी चलाएंगे। तो let me just see if I can start today. एक क्वेश्चन है, ये तो हो गए, ठीक है, यहाँ तक रख लेते हैं इसको। यहाँ पे करते हैं। There is one question says if the crank four rotates at the speed of 150 RPM, determine the angular velocity of link 3.
डायग्राम बना लेते हैं so that this is link 1, 2, 3, 4 in which there are few more data given. What is that? 60 degree. This is link 4. Say if I say okay, O1, O2. This is A. This is B. So given, what is given? Given is O1B, 31 millimeter. O2A, 62 millimeter. And AB, 112 millimeter. So this, it says when, अच्छा उसका डायरेक्शन भी मैं दिखा देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा 4 कितना होगा? 2 pi n बाई 60, कितना हुआ ये देखिए तो, 2 pi n over 60। ये मिलीमीटर में है तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके बताइए। ओमेगा 4 कितना हो जाएगा? So 15.7. Sir, 15.7. ठीक है, और वी बी कितना हो जाएगा? तो बी, जस्ट अ मिनट, इनटू ओमेगा 4 कितना है? O1B कितना? 31 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 0.31 इंटू कितना आया? अच्छा मिलीमीटर, मीटर्स में, सॉरी, कितना हो जाएगा ये? 100 आएगा, नहीं 1000, ठीक है, इसको सही करिए। ये हुआ ना? 0.4867. 0.486. पॉइंट 486. मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, तो ये तो हो गया वीबी। अब क्या निकालने को कह रहे हैं ये लोग? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक 3 कैसे बढ़ाएंगे? करिए, निकालिए, इनके इंस्टेंटेनियस इंटरेस्ट निकालिए। हमें ये ध्यान था, हमने अगर इसको छोटा करें तो जस्ट मिनट, इसको ये क्या जाएगा? 2 4 1 3 कहाँ जाएगा? This is I13।
ठीक है, use the property of stringent centers. क्या हुआ, सेम VA by I13 A equal to VB by 13 B equal to omega 3, ये निकालना है ना, I will have lost you. आइए, VB is given 0.486 I13B, ये निकालना पड़ेगा, है ना, ये डिस्टेंस निकालिए, so whatever the distance will give you omega 3, है ना। जस्ट थोड़ा सा उन्होंने बस ज्योमेट्री में डायरेक्शंस बदल दिए, लिंक्स की पोजीशंस जैसे बदल दी, बस इतना चेंज किया उन्होंने, एंड यू विल गेट द वैल्यू इन रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, इसको भी करिए आप, इस क्वेश्चन को भी आपको 5 ये दे दिए, एक क्वेश्चन ये दे दिया, क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए। ठीक है, ये वाला भी काम देखिए। चलिए कुछ एक नया काम शुरू करते हैं, सेव करना है। Let me come out with a new slide. आप 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर देखते हैं, कुछ और शुरू करते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद हम आपको शुरू करते हैं।
Okay. So now again, coming back to our class, a new topic. Okay. Let me see this one. जस्ट थोड़ा सा मैं आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो दैट देखते हैं अगर जितना आगे तक पहुंच सकते हैं. टॉपिक इज अबाउट kinematics and kinetics of a rigid body in motion. क्या मतलब समझ में आया? हम किसी भी बॉडी जो कि एक प्लेन में मूव कर रही है उसका काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स स्टडी करने जा रहे हैं. Let us presume that with the article say plane motion of a motion of a particle in a plane भी कह सकते हैं. ठीक है, वो पार्टिकल मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. थोड़ा सा इसको let us presume that with a reference means we simply take the ground है ना, reference line. There is a body or particle, sorry, not body, particle. Say this is at a position P at some time instant say T, whose velocity with reference to this point, say this point is say O. हमें कैसे निकालेंगे यहाँ से इसको ऐसे देखते हुए, and we say that this is the VP, this is the velocity perpendicular, है कि नहीं? Yes, sir. अगर हम ये ऐसे कह रहे हैं कि O हमने एक रेफरेंस ले लिया और उसके VP perpendicular to the line joining OP, that means the particle is making some kind of a curvilinear motion, है ना? It is making a curvilinear motion. तो चलो एक काम करते हैं, if I set की curvilinear motion तो using O as a center of rotation ऐसा कुछ हो जाएगा. Say after a gap of delta t, say this position now reaches to a new one p dash. t इतना छोटा कैसे हो गया यार? This is p dash at an instant of t plus delta t. उसकी वेलोसिटी क्या हुई? Again,
जब आपने इसको मान लिया कि कर्वी लीनियर पाथ ले रहा है तो इसको आप ऐसे जोड़िए और ऐसे जोड़ लेते हैं। दिस बिकम्स अगेन दिस, है ना। ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी, हम ये मानेंगे v प्लस डेल v। ठीक है, इसको पार्टिकल की वेलोसिटी vp ना माने p मान लेते हैं, तभी हम इसको थोड़ा सा अब्रिविएशन हमारे बढ़ते चले जाएंगे। If say it is v, this becomes v plus delta v. So how much distance it has covered? Let me mark it. Say this distance is delta s. Okay. While covering the distance delta s in the time fraction t plus delta t, the angle covered, say this is del theta. Sorry, del theta. मैं इसको गलत लिख रहा हूँ. Del theta. And whatever the distance which I have mentioned कि भाई ये starting was theta and sorry मैं mark नहीं कर पाया. Let us presume that the particle P, which is at a distance of rho from the center or a point of rotation from the reference line. हाँ? मैंने शुरू में इसलिए ये तो कहा था कि कर्वी लीनियर पाथ है, then I should have explain to you about the rho as well as rho theta. दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पॉइंट को, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे लें या फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स पे लें। तो पोलर में r थीटा, तो r का मतलब यहाँ पे रो है और दूसरा थीटा पोजीशन पे। तो फिर से इसको आप एक बार इस तरीके से लिखें, इफ ए पॉइंट p at a distance of rho from a reference line which is making an angle theta having velocity v, so after covering a distance of delta s in a gap of delta t, so that means the final position will be t plus delta t. It covers the distance delta s and the angle delta theta. With this, let us see, this is the particle of a path of a particle. Path of the particle. Let us analyze what happens in this case. Let us make one more diagram. See, if I say this is v, this becomes v plus del v. ये हुआ ना, मूव हो गया आगे। अब ये एंगल उसने दिया डेल थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी ये कितना हो गया? डेल वी, ये हुआ ना? Yes, sir. Earlier it was v, now it becomes v plus del v. If further, if I make or analyze it, we can mark it as this value as del v normal, and this one I say del v tangential. Okay, normal, tangential, and this is its resultant velocity, change in velocity. Say this figure is as a this figure is as b, then
what we can do, when I say that when change in velocity is split into change in is split into डेल वी है, इसको हमने क्या किया, एक डेल वी एन बनाया और एक हमने बनाया डेल वी टी, यही किया ना. नाउ if I say when delta t tends to 0, what will happen? Write down the direction of tangential component, that is delta Vt, coincides with V. Okay. And the normal component, that is delta Vn, will be directed towards the center of curvature. So now, when I say when delta, when say when even if इसको हटा देते हैं. When delta t tends to 0, meaning is that direction of tangential component, ये वाला जो part है, ठीक है ना, ये जो part है, tangential component will be directed towards V or coincides ना, tangential component coincides with V, और जो उसका normal component है, ये वाला, this will be directed towards the center of curvature. This is what the meaning of del t tends to 0. Now, I start now here with saying that the magnitude of the velocity of particle at time t is given as capital V is equal to limit LT कर देता हूँ, limit when delta t tends to 0 is given as del S by del T. This is a way of writing the velocity of the particle. V is given as limit when delta t tends to 0, given as del S by del T. This is further written as limit, okay, not this, limit when delta t tends to 0. What is del S? Just see in this diagram, del S. Del S is rho delta theta in figure A. In figure A, है ना? Del S is equal to rho delta theta by del T.
this can be given as rho theta dot differential, which becomes rho omega. Okay, so omega, angular velocity of that uh, particle with respect to the radius of curvature. If you want, I can mark it if it is needed. Otherwise, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे. And theta is the inclination of point with respect to the reference line. Omega magnitude of angular velocity of the particle with respect to radius of curvature, where capital V is what? Velocity of particle, which is it's always tangential to the path. Always tangential to the path. ये देखा ना हमने? Always tangential to the, ठीक है, path. So this is velocity, जिसको कि ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट. अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें और in vector notation, we can say V is equal to omega cross rho. Okay, V is equal to omega cross rho. अब एक दूसरा पॉइंट और देखते हैं. Normal and tangential component of normal and tangential component of acceleration. ठीक है, how it is given. So normal component of acceleration is given as an, which is given as limit delta t tends to 0. We say del Vn by del V or del time, है ना, velocity by time, है ना, acceleration. Now see in figure 2 or figure B, Vn by, can we say del Vn, presuming that, है ना, presuming that it is a always almost a curvature small Vn, तो हम कह सकते हैं रो डेल्टा थीटा या रो Vn is equal to V delta theta now. Del Vn is equal to V del theta. इसको आप presume करिए, बहुत छोटा डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट लाइन की जगह हम उसको we can write down in a way that it becomes limit when delta t tends to 0 V del theta by del t, which is given as V dot, this becomes, what is V here?
we know that just see रो ओमेगा और एक और ये ओमेगा हो गया, थीटा डॉट इज ओमेगा और v is already rho omega. This becomes rho omega square. अच्छा, दूसरा ये कि when a body is rotating, so उसका नॉर्मल जो कंपोनेंट, जैसा भी मैंने बात की है, नॉर्मल कंपोनेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इट्स कर्वेचर, ये डायरेक्शन होगी, और जो टेंजेंशियल है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द v, जो टेंजेंशियल पार्ट है, ये देखा ना हमने, vt जो है वो v से कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन vn जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, मतलब ये कहने का कि vt जो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी वो v के साथ जा रहा है, इसके साथ, और vn will be directed towards the center of curvature, this one. When delta t tends to 0, हम ये इसको लेके चलते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है इसे। तो ये हो गया, अगर हम बोलते हैं दिस इज, इसका जो इन वेक्टर नोटेशन क्या होगा, this becomes, sorry, omega cross rho। लेकिन इसमें एक और भी पार्ट आता है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में an is also given as v square by rho। ये मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन अगर आप पढ़ेंगे, an is also given as v square by rho, और what is v square, what is v, रो ओमेगा, है ना, v is रो ओमेगा, तो रो स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई रो, इट बिकम्स रो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, जो यहां लिखा हमने, इट इज कमिंग सेम वैल्यू, बट इट्स इंटरप्रिटेशन इज फ्रॉम हियर, दिस पार्ट। ना इसमें एक पार्ट हम और करेंगे, ये हो गया नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। नॉर्मल मिला, अभी टेंजेंशियल भी देख लेते हैं। AT is given as limit when delta t tends to 0, we say del Vt by del t. Just refer the figure from this second diagram, figure B. Vt is given as del Vt by del t. इसको हम, अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कह रहे हैं, तो Vt is coinciding, means we are saying that, say when delta t tends to 0, it means Vt is similar to V। ये हुआ ना, तो हमारे पास भी क्या मिला, ये P by del t which is V dot। अब V dot का क्या मतलब हुआ, what is V dot? V dot means rho omega dot, या सॉरी
ये क्या था हमारे पास में, जस्ट अ मिनट, v डॉट मीन्स व्हाट वाज v, रो थीटा, ऐसे ले लो, रो थीटा by del t, this becomes rho theta double dot. रो थीटा डबल डॉट का क्या मतलब हुआ, रो ओमेगा डॉट, व्हाट इज रो ओमेगा डॉट, कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, जस्ट राइट डाउन वेयर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, रो अल्फा, ठीक है ना। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है ना। ये जो v निकाला मैंने, v कहां से लिया, v was given as this one, this value, v is equal to rho थीटा नॉट। थीटा नॉट, तो थीटा डॉट को हमने फिर यहाँ पे किया डबल डॉट एंड दिस बिकम्स रो अल्फा, तो हम ये कह सकते हैं at is equal to रो अल्फा, और इन वेक्टर नोटेशन क्या बनेगा, at, सॉरी, at is equal to alpha cross rho. It is alpha cross rho. So मैंने क्या किया है, हालांकि ये खुरमी और बलानी या रत्न की शायद बुक में नहीं है, I have used two part in this derivation. One is of velocity and another is of acceleration. Velocity का हमने ये पार्ट किया और acceleration में नॉर्मल और टेंजेंशियल यूज किया, ठीक है ना, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। ये एक बुक है बाय अमिताभ घोष, बिकॉज व्हेन आई वाज इन आईआईटी, तो प्रोफेसर्स के इनके साथ में मैं, आई वाज हिज स्टूडेंट आल्सो, तो मैं उनकी बुक, तब मैंने उनकी बुक पढ़ी, तो दैट वाज वन ऑफ द रिनाउंड बुक, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, एंड बट आई फाउंड कुछ चीजें बहुत स्ट्रेट थी, एंड दीज थिंग्स आर इन योर सिलेबस आल्सो। तो ये एक डेरिवेशन है जो कि अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं हमने कि कोई भी पार्टिकल का मोशन, अगर वो, हमने कंडीशन क्या रखी कि वो अगर कर्वी लीनियर पाथ ले रहा है, तो कर्वी लीनियर पाथ ले रहा है तो उसमें उसका चेंज इन वेलोसिटी मिल रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम, चेंज इन वेलोसिटी कब होगी, जब उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। चेंज इन वेलोसिटी तभी है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन है, और खास करके इस प्रकार का एक्सेलरेशन जहां कर्वी लीनियर पाथ है, दैट इज वन सेगमेंट इज ऑफ यू कैन से normal component and another segment is of tangential. So normal means it is centripetal, tangential means which is going along with the original value which is tangent to the path. तो इसको फिर हम अभी एक काम करते हैं, हालांकि ये सिर्फ एक पार्ट हुआ है which is called as
प्लेन मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इसमें अभी आगे भी है, और वो है व्हेन आई से प्लेन मोशन ऑफ ए बॉडी। तो ये प्लेन मोशन ऑफ ए बॉडी वाला पार्ट हम कल करते हैं। प्लेन मोशन ऑफ ए बॉडी एंड देन मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए मूविंग बॉडी। दो डेरिवेशंस हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें 3 डेरिवेशन है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल, देन मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, देन मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन द रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे हम मान लें कि हम मोशन ऑफ एक पर्सन का बताया कि एक बंदा मूव कर रहा है, दूसरा रिजिड बॉडी विच इज मूविंग, जिसके अंदर की ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, वो उसमें हम ये मान लेते हैं कि वो पार्टिकल उसमें फिक्स हैं। और एक तीसरा हम मान लेते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग बट उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं। जैसे हम माने कि कोई पैसेंजर है एक ट्रेन में, तो पैसेंजर को पहले हमने पार्टिकल प्रिज्यूम किया, डिस्क्राइब इट्स मोशन, फिर हमने एक रिजिड बॉडी ट्रेन को मूव करके दिखाया, फिर हमने दिखाया रिलेटिव मोशन ऑफ ए पर्सन इज मूविंग इनसाइड ए ट्रेन। तो इनको हम जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको हम अपने हिसाब से कि कहाँ पे इस सिचुएशन को लेंगे, where we will use motion of a rigid body, where we will use the motion of a particle moving in a rigid body। तो मैं उनके डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा सा इसका ज्यादा एक्यूरेट और इसको कोरिलेट कर पाएंगे आप लोग। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं। जस्ट यू ऑल्सो टेक रेस्ट। कल मैं और कराऊंगा, और कोशिश कर रहा हूं मैं इसलिए कराने का कि अगले हफ्ते की जो क्लास है वो यहाँ पे मैं कंपनसेट कर पाऊं। ओके, तो आपकी प्रैक्टिकल क्लास चलती रहेंगी। थ्योरी हमने मंडे छोड़ दिया था या मंडे भी लिया था? सर मंडे को हुई थी क्लास। तो मतलब ऑलमोस्ट मैं डेली ले रहा हूँ, है ना? यस हाँ सर। ठीक है, कल भी हम ले लेंगे। कैसे देखते हैं, 1 से 1.5 घंटे का कुछ सेशन लेकर के ना ये टॉपिक खत्म कराता हूं मैं आपका। तो ठीक है, ये इसको सेव कर लेते हैं। ये क्या लिखा जाएगा? अच्छा, kinematics of a kinematics of a particle। ठीक है, इसको जिस प्रकार से मैं ये नोट्स बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि मैं कभी भी क्लास में हो तो दोबारा से आपको ये स्लाइड दिखा पाऊं। ओके, और इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये एक टॉपिक है। तो 3 सेगमेंट अभी हमने पहला सेगमेंट किया है, 2 सेगमेंट हम कल करेंगे। ओके सर, चलो ठीक है। देखिए, मुझे पता नहीं सब लोग कितना सीरियसली इसको सुन रहे हैं, बट मैं इस पार्ट को रिपीट नहीं करूंगा, है ना? हमारे पास उतना समय नहीं होगा कि हम जो ऑफलाइन हो गया, जो ऑनलाइन हो गया, उसको फिर से हम लोग ऑफलाइन में दोहराएं। इसका सिलेबस भी थोड़ा ज्यादा ही है। तो देखो, ठीक है आविश और याशिका, दोज हु आर एब्सेंट मार्क इट एब्सेंट। ओके सर। तो इसको अपने पास रखते चलो, बाद में बाई चांस अगर मैं नहीं अभी कर पाता हूँ पैरेलली, अगर कर लेता हूँ तो ठीक है, फिर क्रॉस चेक भी कर लेंगे बाद में हम कभी। ठीक है, सो बोथ ऑफ यू मार्क एब्सेंट ऑन दैट लिस्ट। अब ग्रुप में देखते हुए कौन कौन नहीं है। तो राइट नाउ आई एम लीविंग द क्लास।